Hello, good evening everyone. Today again presenting before you the evaporation part 5. It is the topic of chapter 1 NCERT class 9 science. So we are going to discuss about the evaporation and its various concepts. So let's study. First, in previous lectures, we have studied that the various states of matter can be interchanged, and there are various processes involved in that, like boiling, melting, vaporization, which is the other word for boiling, and freezing, sublimation, deposition, condensation. These are all the processes which are involved in the interconversion of matter. But here the point is that today the evaporation is related with the conversion of liquid into gaseous, okay, to liquid into gaseous state. So now the question arises, we have studied कि लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारी क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, वेपोराइजेशन ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग. और पर्टिकुलर टेम्परेचर जब लिक्विड गैस स्टेट में गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, इट जस्ट स्टार्ट, द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच लिक्विड जस्ट स्टार्ट टू कन्वर्ट एट द gaseous form is known as boiling point. That temperature is known as boiling point. So boiling point is the minimum temperature at which liquid can start to convert to vapor. So in nature, can we see any example that below boiling point the liquid is converted to gaseous form? Yeah, there are many. So we are going to discuss about this, and by that process is known as evaporation. So the question is, can we change the liquid into vapor state without heating to its boiling point? The answer is yes, by the process of evaporation. Evaporation is a very common term. आई थिंक यू आर वेल. वाटर साइकिल में इवापोरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. इवापोरेशन के थ्रू जितना हमारे अर्थ के सरफेस, लिक्विड सरफेस में है ना, ओशियंस इंक्लूडिंग ऑल ओशियंस, वेल्स, लेक्स, रिवर्स, ऑल, okay, 3/4 part of the earth is filled with या covered with water. So all the water of the earth surface that gets evaporated and converted to water vapor, which will reach high above the earth atmosphere, and there then it will condense and will come back in the form of air drops. That is known as water cycle. And here how the water cycle rotates. So now we are going to discuss about the evaporation. So what is evaporation? It is the process of conversion of liquid into vapor state below its boiling point. Evaporation liquid को vapor state में convert करने की process है, but the point to be noted here, it is below boiling point, because we have already studied the process of conversion of liquid to vapor state, but now we are going to study the evaporation. Why? evaporation topic को अलग से इसलिए लिया गया है क्योंकि it is a somewhat different phenomena from boiling. So how it is different, we will just learn in our slides. So it is a surface phenomena, particles on the surface. इसको surface phenomena इसलिए बोलते हैं क्योंकि water जिस भी यूटेंसिल में या जिस भी स्पेस में वो रखा हुआ है, सरफेस वाटर है, लाइक रिवर है, लेक है, ओशियंस हैं, देयर आर मैनी. अगर यूटेंसिल में वाटर रखा हुआ है तो जिस भी जगह अगर वाटर रखा हुआ है तो उसका जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है, जो हमको विजिबल होता है, जो सराउंडिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जो हमारी आसपास की सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उससे इवापोरेशन सबसे पहले होना स्टार्ट होता है. इसलिए हम कहते हैं एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. पार्टिकल्स ऑन द सरफेस गेन्स इनफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. जो कि सरफेस में किसी भी यूटेंसिल में अगर वाटर रखा हुआ है, ये यूटेंसिल और ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो जो पार्टिकल्स हमारे सराउंडिंग में हैं वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से एनर्जी को गेन करके अपने बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ेंगे, उसको ओवरकम करेंगे, एंड देन दे विल बी फ्री टू बिकम द वेपर मॉलिक्यूल्स. ओके, सी हाउ इट इज. यहाँ सन है हमारे पास, सन की रेज हैं. सन की रेज जब अर्थ सरफेस में पड़ती है तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ दे आर इन द डिफरेंट वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ रेज, है ना. तो ये एनर्जी के फॉर्म में जब हमारे अर्थ सरफेस में पड़ती है तो अर्थ सरफेस में जितनी भी डिफरेंट बॉडीज़ हैं, लिक्विड बॉडीज़ हैं, जैसे कि यहाँ ओशियन का एग्जांपल लिया हुआ है, तो ओशियन का जो सरफेस है, स्पेशली इन द सरफेस, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाता है, वार्म अप हो जाते हैं, है ना, ऊपर का
अंदर का लेयर जो होगा वो वैसे ही कोल्ड होगा, कोल्डर होगा एज़ कंपेरिजन टू सरफेस एरिया। तो जो सरफेस वाला जो एरिया है उसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो थोड़े वार्म अप हो जाएंगे। वार्म अप क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। वार्म अप होने से क्या हुआ, उनका कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो बढ़ गई। उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ेगा। वाइब्रेशन बढ़ने से ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक एंड वीकर बनता जाएगा। फाइनली दे विल स्केप आउट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो दीज आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ओके. So this is all the evaporation process. See, we are going to discuss some examples of it. There are various day-to-day examples we are seeing in the in our daily life of evaporation. So see, examples of evaporation में हमने पहले क्या देखा? So see now, here is the sun and the clothes, है ना, ड्राइंग अप ऑफ क्लोथ. जब आप क्लोथ्स को बाहर फैला देते हो तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2-3 आवर्स, व्हाट वी सी, द क्लोथ्स गेट ड्राई अप. वेयर द वाटर ऑफ द क्लोथ, जितना भी जो वाटर था क्लोथ्स में वो कहाँ चला गया? दे आर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, ओके. वाई? बिकॉज हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. जो एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब करने से उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी, वो जो वाटर था क्लोथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी एंड दे गेट इवापोरेटेड. नाउ सेकंड एग्जांपल इज दी ड्रायर. व्हाट यू यूज टू ड्राई अप योर हेयर. ड्रायर क्या करता है? ड्रायर जस्ट पासेस द वार्म एयर टू योर हेयर. वार्म एयर आती है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ऑन होता है तो उस ड्रायर से वार्म एयर, जो आसपास की जो एयर है हमारे उस ड्रायर के, वो क्या हो जाती है? वार्म अप हो जाती है. तो जो हमारे हेयर्स में जैसी वार्म एयर आती है तो जो लिक्विड, जितना भी वाटर होता है हमारे हेयर्स में, वो पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाता है? उसका टेम्परेचर बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं एंड दे विल escape out या evaporate into the form of water vapor. Next is the example. See, here is a hot cup of coffee or tea, whatever you prefer. So क्या हुआ इसमें कि जो हमारा गरम गरम जब हम चाय लेकर आते हैं कप में, तो चाय से जो ऊपर वाली जो सरफेस है हम देखते हैं, जब बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे ही आपने गरम गरम चाय, बॉइल्ड टी अगर आप एक कप में लेते हो तो उस कप से थोड़ा थोड़ा वेपर्स के फॉर्म में हमें दिखाई देता है. डैट इज़ नथिंग बट दी अपर सरफेस ऑफ टी या कॉफ़ी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, ओके, या इवापोरेटेड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो हमारे ओशियंस, वाटर सरफेस, दैट इज ऑल दी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ इवापोरेशन थ्रू विच. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. सो नाउ, क्या बॉइलिंग एंड इवापोरेशन इन द बोथ प्रोसेस व्हाट वी आर गोइंग, अभी तक अपन ने डिस्कस जो किया इससे ये समझा कि बॉइलिंग में भी हमारा लिक्विड जो था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था. इवापोरेशन में भी क्या हो रहा था? जो लिक्विड था वो वेपर में चेंज हो रहा था. मतलब दोनों ही प्रोसेस में कहीं ना कहीं चेंज ऑफ फेस हो रहा है, डैट इज लिक्विड इनटू गैस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस? सो देयर आर वेरियस डिफरेंसेस. फर्स्ट वेरी डिफरेंस जो हमने अपनी डेफिनेशन में ये मेंशन किया है कि जो इवापोरेशन है इट अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. बट बॉइलिंग पॉइंट, इट व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग इज अ प्रोसेस विच अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर दैट इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. किसी भी सब्सटेंस, एक बात और इससे ध्यान रखिए, बॉइलिंग जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है अगर हम उसको लिक्विड उसमें डालते हैं. बट जो इवापोरेशन होता है वो केवल वाटर सरफेस से होता है. लिक्विड में भी किस सरफेस से होता है? वाटर, ओके. तो देखिए, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस. तो हम कुछ डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टडी करते हैं. जैसे पहला डिफरेंस ये है कि जो वाटर है वो हमारा क्या हो जाता है अगर इवापोरेशन प्रोसेस की बात करें. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन, ओके, एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग. सो इवापोरेशन में क्या हो रहा है? जो वाटर है हमारा कितने डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है? यहाँ पे 20. अगर आप थोड़ा सा वार्म अप कर देते हो अप टू एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस में भी हमारे कुछ वेपर्स बाहर निकल जाते हैं. और वो वेपर्स बाहर, मतलब इवापोरेशन
प्रोसेस ये कहलाती है, जिसमें जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर इवापोरेट हो जाता है केवल सरफेस से। ध्यान रखिए यहाँ पे किसी पूरे अंडर ऑफ वाटर में हमें बबल्स अपीयरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अंदर बल्क फिनोमेना नहीं है। हमने बॉइलिंग में पढ़ा था कि इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे होल एज अ लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बल्क इन अ बल्क विल started to separate out, but here in case of evaporation यहाँ पर किसी बल्क लिक्विड में कोई सेपरेशन या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक नहीं पड़ता है, बट सरफेस ओनली द मॉलिक्यूल विच आर इन द सरफेस दे एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। और इसमें भी एक कंडीशन है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा तभी ये प्रोसेस हमारी होती है। प्रेशर भी ज़्यादा होगा, है ना, नहीं, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होता है, ये इवापोरेशन प्रोसेस अकर कर सकती है। क्या होता है, वेपर प्रेशर हमारा सराउंडिंग का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वेपर प्रेशर कम कब होता है, जब उसमें मॉइस्चर कम होता है। तो कम मॉइस्चर कब होता है, जब वो एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो एयर ड्राई होनी चाहिए एंड सेकेंड कंडीशन इज़ दी टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इन दो कंडीशंस में इवापोरेशन अकर कर सकता है, चाहे वो कितना भी मिनिमम डिफरेंस ही क्यों ना हो। जैसे ही वो डिफरेंस इक्विलिब्रियम में आता है, इवापोरेशन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन जस्ट स्टॉप। तो ये पॉइंट भी बहुत समझने वाला है कि इवापोरेशन प्रोसेस के होने के लिए क्या कंडीशंस है कि हमारे सराउंडिंग का वेपर प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन तक इवापोरेशन प्रोसेस होती है। जैसे ही हमारे ये वाटर सिस्टम का और हमारे सराउंडिंग का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इवापोरेशन प्रोसेस विल गेट स्टॉप। ओके, सो हियर, हाँ, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें चीज़ों को थोड़े कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। सेकंड देखिए, बॉइलिंग के केस में क्या है, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एंड देयर ऑल्सो द वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये हमको दिख रहा है ना वाटर वेपर, बट ये वाटर वेपर स्टार्ट कब हो रहे हैं, जब हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक वार्म किया जा सका है। ओके, बिकॉज हियर यू सी द कंटेनर इज क्लोज्ड होने के कारण इसको एटमॉस्फेयर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही। द एनर्जी वी आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ heat, extra energy we are giving in the form of heat, that only it absorb from the lower surface and then it transfer it to hold the water particle in a bulk and then it will be converted to vapor. ओके, तो बॉइलिंग में भी इवापोरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, बट इवापोरेशन में बॉइलिंग नहीं होती। इवापोरेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, बॉइलिंग में वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग के लिए सराउंडिंग से ज़्यादा सराउंडिंग मैटर नहीं करता है, कोई भी सब्सटेंस का पर्टिकुलर एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे वो बॉयल करना स्टार्ट करता है। ओके, सो आई थिंक द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो सी, एक और डिफरेंशिएट बिटवीन हम देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या देख रहे हैं, इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना है, यानी केवल ये ऊपर के है, और यहाँ बॉइलिंग क्या है, इट इज़ नॉट अ सरफेस फिनोमिना, इट इज़ अ बल्क फिनोमिना, इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। तो बल्क फिनोमिना होने के कारण ओवरऑल जो पार्टिकल्स है वो बाहर की ओर गिर रहे हैं। एक चीज़ और है, इवापोरेशन का प्रोसेस सरफेस है, साथ में क्या है, ये काफ़ी साइलेंट प्रोसेस है, शांति से चल रहा है, बिकॉज सरफेस में धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल जब इनफ एनर्जी वो कर लेते हैं तो वो धीरे से निकल जाते हैं। बट बॉइलिंग में क्या हुआ, बहुत हल्ला करते हुए पानी पहले एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। सो इट इज़ नॉट अ साइलेंट प्रोसेस बट इट इज़ अ वॉयलेंट प्रोसेस। ओके, और वॉयलेंट, जो चीज़ ज़्यादा वॉयलेंट होती है वो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या होती है, साथ में ज़्यादा फास्ट भी होती है। ओके, बट इवापोरेशन साइलेंट है, साथ में ये क्या है, थोड़ी स्लो भी है। ओके, तो इवापोरेशन इज अनदर डिफरेंस इज दैट इवापोरेशन इज अ स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस एंड बॉइलिंग इज वॉयलेंट एज वेल एज फास्ट प्रोसेस। एक पॉइंट यहाँ पे कुछ नीचे मेंशन किया हुआ है, देखते हैं क्या मेंशन किया हुआ है, ये स्लो हटा दे। वेपर प्रेशर इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा वेपर प्रेशर होना चाहिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। वेपर प्रेशर कम तभी होता है, ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ह्यूमिडिटी को दर्शाता है। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, द कंटेंट ऑफ वाटर इन द एयर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, प्रेशर कब पड़ता है किसी भी चीज़ में, वेपर इज़ द वाटर वेपर, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, तो कितने वाटर के ड्रॉपलेट्स उस एयर में प्रेजेंट होंगे वो वेपर प्रेशर बनाएगा, है ना। अब वेपर प्रेशर, उस वर्ड के लिए हम ह्यूमिडिटी यूज़ करते हैं ना, इट इज़ द वाटर कंटेंट,
वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वाटर तो प्रेजेंट होगा नहीं, वाटर किस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे एयर में, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ओवरऑल जो हमारी एयर का एक प्रेशर बनता है एक सरफेस ऑफ, जैसे हमारे पास ओवरऑल ये सरफेस है, इसका एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम बना है, तो इस कॉलम का एयर का प्रेशर इस कॉलम में क्या पड़ेगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और वेपर प्रेशर क्या होगा, इस कॉलम में कितने, इस कॉलम में हमारे कितने क्या हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड मतलब वाटर, सॉरी वाटर के पार्टिकल्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर के पार्टिकल्स तो हैं पर वो किस फॉर्म में है, वाटर वेपर के फॉर्म में। वो इस पूरे ओवरऑल इस सरफेस में ही क्या प्रेशर वो करेंगे, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ओके, तो वेपर प्रेशर शुड बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो हमारे मौसम में क्या होती है, थोड़ी नमी होती है, और जब नमी होती है तो इवापोरेशन नहीं होता है, इवापोरेशन होता तो है बट कम होता है। तो वेपर प्रेशर कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर, क्योंकि एयर शुड बी अ ड्राई। सो और दूसरी बात ये है, इवापोरेशन में बबल फॉर्म नहीं होते, ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि बबल्स नहीं होते, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस से ही साइलेंटली, सरफेस में कुछ पार्टिकल साइलेंटली एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और अपने व्हेन दे ओवरकम तो दे विल लीव द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और बॉइलिंग में क्या होता है, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक टेम्परेचर में यहाँ पे बबल्स कैन फॉर्म, यहाँ पे क्या हो जाता है, बबल्स फॉर्म होते हैं एंड राइज, बबल फॉर्म भी होते हैं और साथ ही साथ बढ़ते भी जाते हैं, बढ़ते जाते हैं तो वो ओवरऑल लिक्विड को भी वार्म करते हुए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट बाय हीटिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन में बिलो बॉइलिंग पॉइंट। Okay, so it occurs at fixed temperature, it occurs at any temperature, it is a bulk phenomena, it is a surface phenomena. Also the source of energy is needed. बॉइलिंग में क्या होता है, बल्क फिनोमेना तो है और इसको हीटअप करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक सोर्स होना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी वो अपने आप सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन जैसे अभी अपन ने देखा सनलाइट दिन में, रात में भी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है तो इवापोरेशन हो सकता है, बट फिर भी इट इज़ वेरी लेस, क्योंकि सराउंडिंग में इतनी एनर्जी नहीं बचती है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। बॉइलिंग के पूरी प्रोसेस में अगर 100 डिग्री सेल्सियस में होता है तो जब तक वो बॉयल हो रहा, अपन ने पढ़ा है, क्योंकि अब जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो क्या होती जाती है, टेम्परेचर राइज नहीं करता। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग वी हैव स्टडीड देयर इज़ अ पॉइंट, जैसी मिनिमम टेम्परेचर मतलब उसका जो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, से एग्जाम्पल वाटर, उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस एक बार अटेन हो जाएगा तो उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अप टू कब तक वो टेम्परेचर फिक्स रहा, टिल द एवरी लिक्विड पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द लिक्विड स्टेट फाइनली कन्वर्ट्स टू गैसियस स्टेट। तो पूरा का पूरा जब वो गैसियस कन्वर्ट हो जाता है, जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है, मतलब ओवरऑल जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो क्या होती है, हमारी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड प्रोसेस में होती है, फिक्स टेम्परेचर में होती है और टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। बट इवापोरेशन में टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इवापोरेशन में एक बात और ध्यान रखो, इवापोरेशन जिस भी बॉडी से हो रहा है, जैसे हमारे वी आर गेटिंग स्वेट इन समर, यू सी समर डेज़ में हमको बहुत स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का जो फ्लूइड है, हमारी बॉडी में 90% फ्लूइड से बनी हुई है ना, हमारी बॉडी में 90% क्या है, पानी है। तो उस 90% में भी क्या हो रहा है, तो जो भी हमारा पानी है, तो जब वो वार्म अप हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब वो गर्मी बढ़ती है शरीर में, तो वो क्या होने लगता है, इवापोरेट होने लगता है पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड दैट कम्स थ्रू द पोर्स ऑफ आवर स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, है ना। तो जब स्वेटिंग हो जाती है तो आपने देखा होगा कि आपको कूलिंग फील होती है ना, कूल फील होता है, थोड़ा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी थी, हीट एनर्जी थी, वो क्या हो गई, वो बाहर चली गई वाटर वेपर के फॉर्म में। तो जो अब बचा हुआ लिक्विड है वो कंपेरेटिवली पहले से तो कम गर्म होगा ना, अभी भी गर्म है बट कम गर्म होगा, इसलिए हमको पसीने मतलब स्वेटिंग निकलने के कारण ठंडा फील होता है। ओके, it is a boiling, it is a fast and violent process, and evaporation it is a slow and silent process. Okay, now let us focus on what are the factors which affect the rate of evaporation of liquid. So now see students, पहले हम ये बात देख ले कि evaporation क्योंकि एक surface
सराउंडिंग से होने वाली है, तो सराउंडिंग की ऐसी बहुत सारी फिजिकल कंडीशंस है जो कि इवापोरेशन के रेट को, मतलब इवापोरेशन कितनी जल्दी या कितना फ्लो होगा, इस बात को अफेक्ट करेगा. सो देयर आर मेनली 4 पॉइंट्स. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर. सेकेंड वन इज द विंड. थर्ड वन इज द ह्यूमिडिटी. Humidity means water content. And fourth one is the surface area. Okay, so let's discuss one by one. टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए, अभी अपन ने पढ़ा है, क्योंकि इवापोरेशन कहीं ना कहीं फेज को चेंज कर रहा है. वो भी किस फेज को चेंज कर रहा है, लिक्विड को सॉलिड में, गैशियस में कर रहा है. तो लिक्विड हमारा कैसा है, गैस के कंपैरिजन में कैसा है, लोअर एनर्जी वाले पार्टिकल्स है. और गैस में कैसे वाले एनर्जी वाले पार्टिकल्स होने चाहिए, ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स होने. गैस ज़्यादा हेल्दी है. ज़्यादा हेल्दी होने के लिए हमको क्या करना है, वो ये प्रीवियस स्लाइड्स में अपन ने देखा था ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा हेल्दी कौन है, गैस सबसे ज़्यादा हेल्दी, सॉलिड नहीं. सॉलिड हाँ दूसरों को मारना है तो पत्थर सबसे ज़्यादा अच्छा है ना. बट अगर देखा जाए हेल्दी के केस में देखा जाए तो गैसेज आर हेल्दी. ओके, यहाँ केमिस्ट्री लैंग्वेज में गैसेज आर द मोस्ट हेल्दी, क्योंकि इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड. तो यहाँ लिक्विड के कंपैरिजन में गैस क्या है, ज़्यादा हेल्दी है. ज़्यादा हेल्दी यार मीन्स यहाँ ज़्यादा एनर्जी है. और ज़्यादा एनर्जी कैसे आएगी, जब हम लिक्विड स्टेट में उतनी एनर्जी का इनपुट देंगे, है ना. तो वो इनपुट किस फॉर्म में है, टेम्परेचर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में. तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज. तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा. तो टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाता है. रेट यानी उसकी स्पीड बढ़ जाती है. ओके, जैसे ये देखिए, अगर टेम्परेचर कम तो इवापोरेशन कम, टेम्परेचर ज़्यादा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा. ओके, दूसरा सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में ये होता है कि जितना सरफेस आप उसको दोगे, जितना खुला हुआ सरफेस आप उसको प्रोवाइड करोगे. आपने देखा होगा, अगर आप वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने के बाद या कपड़े धोने के बाद आप उसको बकेट में ही रहने दो, तो क्या वो शाम तक सूख पाते हैं, क्या नहीं सूख पाते. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर है, बहुत गर्मी है, तो वो कपड़े थोड़े सूख जाएंगे. आप देखोगे कंपेरेटिवली थोड़ा तो सूखेंगे, बट वो पूरे तरीके से नहीं सूख पाएंगे. अभी भी उनमें वाटर कंटेंट अवेलेबल रहता है, अभी भी उनमें कुछ नमी रहती है. वो क्यों रहती है, क्योंकि वो जो सरफेस था, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा जो इवापोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है. सरफेस फिनोमेना मतलब वो एनर्जी अपनी कहाँ से ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है. अब सराउंडिंग से लेने के लिए वो जो सरफेस है वो सराउंडिंग को ओपन होना चाहिए ना, तब तो वो उतनी एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा. जब वो सराउंड अवेलेबल ही नहीं है, सराउंडिंग से खुला हुआ नहीं है, तो आप एनर्जी कैसे लोगे. जब आप अपना गेट खोलोगे ही नहीं तो अंदर कैसे बुलाओगे एनर्जी को, मेहमान को कैसे बुलाओगे. तो अगर अपन को एनर्जी, मतलब जो हमारे गेस्ट हैं, अगर उन्हें अंदर बुलाना है तो हमें पहले अपना कुर्सी, दरवाज़ा, है ना, सारी चीज़ें खोल के रखनी पड़ेगी कि आइए ग्रहण करिए जगह और हमको एनर्जी दीजिए, है ना. तो इस तरीके से तो आप ये देखो कंपैरिजन यहाँ पर, ये जो हमारा 2 यूटेंसिल्स हैं हमारे पास, एक यूटेंसिल ये है, एक ये है. ये वाले जार में हम देख रहे हो कि कंपेरेटिवली लेस है. इस वाले जार में हमारा जो सरफेस है वो थोड़ा ज़्यादा है. इस अगर बिल्कुल ओपन रख दिया जाए उसको लैंड में तो और ज़्यादा है. तो इस तरीके से जितना ज़्यादा आप देखो यहाँ पे इवापोरेशन और जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो ज़्यादा जल्दी एनर्जी गेन करके ज़्यादा जल्दी इवापोरेट हो रहे हैं कंपेरेटिवली इससे और इससे. Okay, so surface area increases the rate of evaporation. It is also the directly proportional relation. Directly proportional मतलब आप समझते होगे कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, है ना. जैसे अगर आज के टाइम पे क्या चल रहा है, अपने फ्रेंड से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखते हैं. फ्रेंड खुश होगा तो हम भी खुश होंगे, पर अगर दुश्मन होगा तो दुश्मन से हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर जिससे हमारी अच्छी नहीं पड़ती है तो वो अगर खुश होगा तो हम क्या हो जाते हैं, अरे यार क्यों खुश है, थोड़ा दुखी हो जाते हैं, है ना. और अगर वो थोड़ा दुखी है, ज़रूर उसको कोई परेशानी, मज़ा आया, ठीक परेशान हुआ, मुझे भी बहुत परेशान किया था इसने, है ना. सो इट इज़ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसा जैसा उसके ऊपर जिस चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ रहा है वैसी वैसी मेरे ऊपर उसी कंडीशन का उसी रूप से इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना.
चलिए नेक्स्ट ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज द, सबसे पहले ह्यूमिडिटी वर्ड होना चाहिए। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, है ना, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर में वाटर वेपर का क्या कंटेंट है ना, तो एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो उसकी ह्यूमिडिटी को बताता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो एयर क्या होती है, थोड़ी नमी होती है, ड्राई कम होती है, लेस ड्रायर होती है। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जैसी जैसी ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। और इवापोरेशन के लिए क्या कंडीशन है कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ह्यूमिडिटी के केस में ये कंडीशन होती है दैट डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर इवापोरेशन, देयरफॉर इवापोरेशन थोड़ा डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे। ओके, इट इज़ सो। यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ दुश्मन वाली बात आ गई है ना, यहाँ किसके किसके कितने दुश्मन हैं चलिए, ह्यूमिडिटी के बाद हम पढ़ते हैं विंड स्पीड में। इंक्रीज इन विंड स्पीड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इवापोरेशन, क्योंकि विंड क्या करती है, कहीं ना कहीं ड्राई एयर को और ज़्यादा, विंड ऐसे हेल्प करती है कि जो सरफेस में जितने मॉलिक्यूल्स अब वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट तो हो रहे हैं। जब आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, कोई धीरे धीरे कर तो रहा था उस प्रोसेस को, पर आपने एकदम से उसको एक हवा का झोंका दिया तो वो थोड़ा सा ईजिली यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाता है। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल धीरे धीरे गैसेस में कन्वर्ट हो रहे थे, उस गैसेस को और आसानी से ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए, अबव इन द एटमॉस्फेयर ट्रांसफ़र करने के लिए एयर विंड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब वो और ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो जगह खाली हो जाती है, तो फिर नीचे वाले जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अगर हमारे पास जैसे कंटेनर है ना, तो धीरे धीरे जो सरफेस था, अगर सरफेस के पार्टिकल्स एनर्जी गेन किए, ये अब धीरे धीरे ऊपर जाना चाहते हैं। अगर हमने इनमें विंड सप्लाई करी, है ना, फ़ैन ऑन कर दिया या कुछ भी विंड या तेज़ विंड आती है, तो सप्लाई करने से क्या हुआ, एयर बढ़ी, है ना, फोर्स बढ़ा एयर के थ्रू ड्राई, क्योंकि ड्राई एयर अगर पास होगी तो क्या होगी, तो वो जो ड्राई एयर है वो क्या होती है। और एयर का एक और होता है, जब बहुत तेज़ विंड होती है तो वो नमी को कम कर देती है, क्योंकि वो नमी वाली जो चीज़ है उसको हटा देती है, उस पर्टिकुलर सरफेस से वाटर वेपर को कम कर देती है, नमी को हटा देती है। कहीं ना कहीं विंड की स्पीड क्या करती है, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ कर देती है, कम कर देती है। ह्यूमिडिटी डिक्रीज एज द विंड स्पीड इंक्रीजेज। तो विंड स्पीड इंक्रीज होने के कारण ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है, और ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो विंड का थोड़ा इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि विंड डायरेक्टली उसको कोई एनर्जी नहीं देता, बट उस पार्टिकल्स को ये एनर्जी देता है कि वो पार्टिकल्स अपनी जगह वहाँ से छोड़ दें। जगह छोड़ देते हो, जगह खाली हो जाती है, फिर ये जो नीचे वाले सरफेस है, मतलब ये जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको छोड़ने के लिए वो करता है ना, गैशियस पार्टिकल, फिर ये जो नीचे वाला सरफेस है ये ऊपर उठ जाएगा, फिर इस तरीके से धीरे धीरे प्रोसेस। तो विंड स्पीड से भी जो हमारी प्रोसेस होती है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इवापोरेशन। नाउ वी सी, जैसे अगर आपने कोई भी चीज़ धुल के अगर पंखे में सुखा रहे हो, तो कंपेरेटिवली जब ठंडियों के टाइम पे या बारिश के टाइम पे हम कम सन नहीं दिखता, हमको बहुत दिनों तक सूरज भाई नहीं निकलते हैं ना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, घर के अंदर ही उस सरफेस एरिया को बढ़ा के बहुत अच्छे से फैला के कपड़ों को फैलाते हैं एक रस्सी में, और ऊपर हम फ़ैन ऑन कर देते हैं। तो वो फ़ैन हमारे फ़ैन की स्पीड से रात भर में वो कपड़े सूख जाते हैं, है ना। तो वो क्यों, विंड स्पीड के चलते। ओके, विंड स्पीड से। अब देखिए बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इवापोरेशन कॉसेस कूलिंग। अभी अपन ने डिस्कस किया था, क्योंकि इवापोरेशन ने किया क्या एक्चुअली, वो हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड था, हमारी बॉडी में नहीं या जिस भी ऑब्जेक्ट में लिक्विड वाटर था, जो वो वाटर था गर्म हुआ, गर्म होने के बाद उसने वो जगह छोड़ दी, तो गर्म वाली चीज़ ने तो जगह छोड़ दी ना, तो कंपेरेटिवली हमको क्या होगा, कूलर फील होगा। और वो गर्म जगह एटमॉस्फेयर में चला गया, तो उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर को गर्म कर दिया, तो एटमॉस्फेयर के कंपेयर में हमको कूलिंग फील। इसलिए ऐसा कहते हैं इवापोरेशन कॉसेस कूलिंग। क्या प्रोसेस होती है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। पहले इसमें क्या होता है, जो सरफेस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जो सरफेस है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जैसे ही इंक्रीज होती है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं, ओवरकम करने के बाद स्केप आउट इनटू द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब वाटर वेपर के फॉर्म में जब वो चले गए, तो बचा हुआ जो लिक्विड है, ध्यान रखिए ये जो पॉइंट है, डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी,
रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल्स तो अब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वो तो चले गए ना, तो वो अपने साथ क्या लेकर गए, एनर्जी लेके चले गए। जब एनर्जी कम हो जाती है तो हमको क्या होता है, कूलिंग का इफेक्ट फील होता है ना। तो कूलिंग का इफेक्ट दिखता है कब, जब एनर्जी कम हो जाती है। कल ही अपन ने पढ़ा एनर्जी ज़्यादा कब होती है, जब हीटिंग करते हैं, और जब हीटिंग से कूलिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो हमें वो होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं उस पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से लिक्विड पार्टिकल्स थे जो सरफेस में थे वो गैशियस में कन्वर्ट हो गए। अब बचा हुआ जो लिक्विड पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। इससे ये नहीं कि पूरा ओवरऑल बचे हुए का थोड़ा कंपेरेटिवली पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से वो कूलिंग कॉज करेंगे। ओके, सो सी हाउ डज कूलिंग वर्क। कूलिंग कैसे वर्क करती है, जैसे कि आप कूलर, आपके घर में कूलर, अभी गर्मियों के दिनों में सभी के घर में कूलर भी कैसे वर्क करती है, जैसे वार्म एयर है, वार्म एयर फिल होती है, जैसे ही अंदर जाती है तो आप देखो कूलिंग में एक पंप लगा हुआ होता है। पंप क्या करता है, नीचे से जो वाटर टैंक होता है उससे वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप पंप ने वाटर को कैरी किया, कैरी करके किसको दे दिया, वो जो फिल्टर लगे रहते हैं चारों तरफ कूलर के, हनी कॉम्ब, आजकल तो बहुत अलग अलग तरह के पैड्स अवेलेबल है, तो उनकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की, वाटर को। तो ये क्या कर लेते हैं, ये जो फिल्टर हैं ऑलरेडी इस पंप के थ्रू वाटर को गेन करके और पूरा एब्जॉर्ब करके रखते हैं वाटर पार्टिकल्स को अपने अंदर। जैसे ही अब एयर आई, तो एयर अभी जो आ रही थी, क्योंकि ये रेड है तो ये जो रेड एरोज है वो शो कर रहे हैं हॉट एयर को। तो आसपास की गर्मियों में क्या होती है, जो एयर हो जाती है वो थोड़ी कम हॉट हो जाती है। हॉट एयर जैसी ही आई फिल्टर में, तो फिल्टर में आने से पानी के टच में क्या हुआ, वो तुरंत उसने पानी क्या करेगा, गर्म हवा से हीट एनर्जी को लेगा, क्योंकि पानी का काम ही है, वाटर का काम है, वो बहुत जल्दी अपने आसपास के एटमॉस्फेयर सराउंडिंग, उसको जहाँ भी मिला नहीं, आसपास कैसे भी मिला नहीं गर्म कोई चीज़, तो तुरंत उसने उसकी हीट एनर्जी दे दी। और वैसे भी हम जानते हैं हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। तो इससे एब्जॉर्ब हुआ, तो क्या हुआ, ये जो एयर थी वो पार्टिकल्स क्या हो गए, कूल हो गए, क्योंकि उसने अपनी जितनी एनर्जी थी वो किसको दे दी, इस फिल्टर को दे दी। फिल्टर, ये जो हनी कॉम पैड लगा हुआ था कूलर में, या डिफरेंट तरह के पैड आते, खस भी जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना, खस जो लगी हुई थी, तो उस खस ने क्या किया, उस एयर में से जितनी भी गर्मी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके वो पानी तो गर्म हो गया, वो पानी फिर वापस से कूलर में ही गिर जाता है, और वाटर टैंक फिर से उस पानी को फिर यहाँ गिरता है, और फिर तुरंत थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर फिर से ड्रॉप आउट भी हो जाता है। फिर वो पंप ऐसा बार बार रिपीट करता रहता है, इसलिए बीच बीच में हम उसको ठंडा पानी बदलते रहते हैं, है ना, ठंडा पानी देते रहते हैं। और अब क्या कर रहा है, अब ये जो हमारी एयर आ रही है, क्योंकि एयर जो आ रही है वो अब कैसी है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी है, इस वाटर को दे दी है, तो जो हीट था उसके अंदर वो उसने इस वाटर पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए अब जो एयर बाहर निकल रही है दिस इज़ कंपेरेटिवली कोल्डर। ओके, understood? So this was the how evaporation cooling works. So let us answer some common questions. SI unit of temperature, it is the Kelvin. 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, तो 3 + 273, दिस इज 274, 5, 6, 276 Kelvin. Okay, understood? When a solid melts, its temperature remain the same. So where does the heat energy go? कल ही अभी अपन ने अपनी स्लाइड्स में पढ़ा था कि जब सॉलिड मेल्ट करता है उसका टेम्परेचर सेम इसलिए रहता है क्योंकि जितनी भी हीट एनर्जी है दैट गोज टू कन्वर्ट द मेन फेज चेंजिंग में वो इन्वॉल्व हो जाती है ना, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. So the heat energy goes, they get hidden in the form of latent heat of fusion, and that goes to convert the force of attraction, जितना force of attraction उसको weak बनाने में यूज़ हो जाती है. मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, एटमॉस्फेरिक गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो क्या मेथड है, प्रेशर को डिक्रीज़ करना है और टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ करना है. जब हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज़ करते हैं तो गैस क्या हो जाती है,
लिक्विफाई हो जाती है, कूल हो जाती है, कूल होकर लिक्विफाई हो जाती है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? कॉटन क्लोथ समर में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया था कि समर में हमें स्वेटिंग होती है ना, इवापोरेशन प्रोसेस के कारण। तो वो जो स्वेटिंग होती है, कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, ईजिली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी से उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो गर्म पानी था वो अब हमारी बॉडी में नहीं रहा, बाहर चला गया, कॉटन क्लोथ्स में चला गया, ट्रांसफ़र हो गया कहीं और, तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट होता है। Why do we see water droplets on the surface of glass containing ice cold water? It is very common phenomena। जब आप गिलास, जैसे कोई फ्रीज्ड बॉटल है या बहुत ही कोल्ड वाटर बॉटल है या ग्लास फुल ऑफ वाटर है जो कि बहुत ही ठंडा, आप एकदम से उसको फ्रिज से बाहर निकालते हो तो थोड़ी देर बाद ही क्या देखते हो, विद इन अ मिनट यू सी सम ड्रॉपलेट्स आउटसाइड दैट ग्लास, दैट कोल्डर बॉडी, है ना, कोल्डर ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली लोग बोलते हैं अरे वो पानी बाहर आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, पानी बाहर नहीं आया, जो आसपास की एयर थी, जो, क्योंकि कहीं ना कहीं एयर इज़ एवरीवेयर ना, तो वो जो हमारा ग्लास था, तो ग्लास के जो सराउंडिंग जो एयर थी, यहाँ जो एयर थी, वो एयर इससे कांटेक्ट में आई होगी, इस ग्लास से। जब वो कांटेक्ट में आती है तो उसने क्या किया, उस कांटेक्ट, क्योंकि एयर थोड़ी सी गर्म थी, गर्म होने के कारण क्या हुआ, कंपेयर, क्योंकि ये बहुत ठंडा था, हमेशा कोई भी चीज़, ये जो टेम्परेचर, ये बहुत कंपेरेटिव रहता है ना, इसका उससे कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन करने पर अगर वैसे गर्म हो चाहे ना हो, बट अगर इसके कंपैरिजन में देखें, क्योंकि ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडा होने की वजह से जो आसपास की सराउंडिंग की जो हवा थी वो थोड़ी गर्म थी, तो गर्म होने से, इस पे कांटेक्ट में आने से उसने क्या किया, अपनी जो एनर्जी है वो उसको दे दी और वो खुद क्या हो गई, कूल डाउन हो गई। तो वही जो एयर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ग्लास के बाहर हमें दिखाई देती है। ओके, तो क्यों, इवापोरेशन मेथड के चलते ही। यहाँ इवापोरेशन हुआ ना, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया वाटर वेपर में, कूलिंग इफेक्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट हुआ उस एयर का, क्योंकि उसने अपनी गर्मी दे दी इस वाटर को, तो जिसकी वजह से एयर क्या हो गई, कूल हो गई, और कूल होकर क्या हो गई, तो दिस इज़ द फिनोमिना विच विल मेक यू अंडरस्टैंड द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, है ना, कूलिंग प्रिंसिपल में डिपेंड करता है। हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट? सेम यही मटके का, जो इन दिनों मटके यूज़ होते हैं, तो जो मटके, सुराही, अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये उनके अंदर कुछ पोरस होता है, ये गर्म हवा को बाहर से वो करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हमारे सराउंडिंग की, और वो गर्म हवा जैसी पानी के कांटेक्ट में होती है तो अपनी जो गर्मी है वो छोड़ देती है और ठंडी पड़ जाती है, तो जिसके कारण चारों तरफ एक पानी, आपने देखा होगा मटका, सुराही, ये सारी चीज़ें आसपास थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते हैं, सींचते हैं, वो इसलिए सींचते हैं क्योंकि कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। Why does our palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? क्योंकि ये जो एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो हमारे बहुत ठंडे होते हैं, जैसे ही हमारे पाम में पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो हथेली होती है वो थोड़ी गर्म होती है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर उसके कारण गर्म होती है, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के कारण फिर वो क्या होता है, उनको इनफ एनर्जी मिल जाती है, और ये जो परफ्यूम और पेट्रोल होते हैं वो वैसे ही वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, हमारे हाथ की जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करके वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन दैट will make you understand the concept of evaporation, and the previous two will make you understand about the cooling effect of evaporation. So all of you well understand about that. So okay, अब हमारे next वीडियो में हम चैप्टर 2 देखेंगे। हमारे चैप्टर 1 पार्ट 5, मतलब टोटल उसके 5 पार्ट्स बने हैं, 1 to 5 we have discussed all about that. So see all the 5 parts of chapter 1 of NCERT. I think it will make you very clear the concepts of NCERT, and I will want to make you more clear. If you are having any of the doubt, so you can ask in the comment section box. Thank you. Have a nice day.